Hi students, welcome to my channel. In this video, I will discuss all the important formulae and important tips या फिर general guidelines which are needed for the chapters ratio and proportion and remainder theorem, factor theorem. Okay, so important tips भी मैं बताऊंगी and all the important formulae. दोनों भी बहुत easy chapter है. Ratio and proportion में you need to know all the properties of proportion. Ratio तो है नहीं, ratio is deleted. Proportion के सारे questions आएंगे. So just some basic concepts you have to know and all the important properties of proportion you have to know, but mostly questions solve होता है, आप लोगों को पता है, mostly questions get solved by using the property componendo dividendo, but सारे properties मालूम होना चाहिए. Rarely कोई किसी questions में you might have to use componendo या only dividendo. Okay, so you have to know all the properties. एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ईजी है. यू ओनली दो थ्योरम्स है जिसका स्टेटमेंट यू हैव टू नो एंड उसके एप्लीकेशंस मालूम होना चाहिए, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज़ करना है एंड फैक्टर थ्योरम कहाँ पे यूज़ करना है. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थ्योरम्स, मेंशन व्हाट थ्योरम यू आर यूजिंग. सपोज इफ यू आर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इन द प्रॉब्लम, wherever you are using remainder theorem, वहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन करो by remainder theorem या फिर ब्रैकेट में लिखो by remainder theorem, and same goes for factor theorem. Okay, and same thing ratio proportion में भी, proportion में जो properties you are using you have to mention like by componendo dividendo. Okay, now let's see all the important formula. First is ratio and proportion. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? 3 numbers आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सपोज ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, देन ए अपॉन बी इज बी अपॉन सी. इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर इज ए सी, बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी. सो ये जो नंबर बी है, दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल एंड सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल. सो मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक सपोज 9 and 4 है. इफ दे आस्क यू टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल between 9 and 4, it will be root of 9 into 4, root of 36, which is 6. ठीक है. Then when asked to use properties of proportion, do not cross multiply. अब इसका मतलब क्या है? In many questions you might have, when you have solved questions you might have seen like एक बार componendo dividendo use करके हम लोग उसको solve करते, then उसी question में again you will have to use componendo dividendo. अब वो वाले step में many children अगर simple रहेगा तो what they will do, they will cross multiply. So cross multiply नहीं करना है, 2 बार componendo dividendo use करना है. Like numerator and denominator में common factors है जो cancel हो जाएगा componendo dividendo से. So you have to solve such questions by using componendo dividendo only. Don't cross multiply. Example है, जैसे कि suppose ये question है. फर्स्ट स्टेप में तो componendo dividendo यूज़ करेंगे. by componendo dividendo you have to mention, then इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ऐसा आ जाएगा. ठीक है. देन ये क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. ये भी सब स्टेप्स रीजन यू हैव टू मेंशन, लाइक व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. अगर स्क्वायर रूट मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है. सो ये मिल गया. नाउ ये स्टेप के बाद डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे यू कैन सी ए प्लस बी, when you are adding a plus b plus a minus b, b cancel हो जाएगा, and when you subtract a cancel हो जाएगा. So in such cases again you have to use componendo dividendo. Do not cross multiply. ठीक है. अगर टर्म्स कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखना है, इफ़ यू हैव कॉमन टर्म्स यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ठीक है. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज इन रेशियो प्रॉब्लम, आंसर टू बी गिवन इन रेशियो फॉर्म इन लोएस्ट फॉर्म. ठीक है. सपोज एक्स इज टू वाई पूछा है, सो एक्स इज टू वाई सपोज 16/9 आया. 16/9 करके छोड़ना नहीं है, यू हैव टू राइट इट एक्स इज टू वाई इज 16:9. ओके, एंड मेक श्योर कि इट इज इन लोएस्ट फॉर्म. ओके. देन ऑल द प्रॉपर्टीज, a by b इक्वल टू c by d, दो रेशियोज इक्वल है. देन b by a इक्वल टू d by c, इन्वर्ट कर दिया यानी कि रेसिप्रोकल ले लिया. दिस प्रॉपर्टी इज इन्वर्टेंडो. a by b इक्वल टू c by d, देन a अपॉन c इक्वल टू b अपॉन d. ऑल्टरनेंडो, c यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे गया. ऑल्टरनेंडो a by b इक्वल टू c by d, देन a प्लस b अपॉन b इक्वल टू c प्लस d अपॉन d. कॉम्पोनेंडो सेम वे, a माइनस b अपॉन b इक्वल टू c माइनस d अपॉन d. डिविडेंडो हो गया. एंड मेन प्रॉपर्टी जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये चैप्टर का, इफ द टू रेशियोज आर इक्वल देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ओके. एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया. ऑलवेज स्टेट द प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चन. वॉट एवर प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग, स्टेट द प्रॉपर्टी. एंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में टेक केयर ऑफ द साइंस इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग
जो पॉजिटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे -a हो जाएगा और ये +b हो जाएगा. सो जल्दी में आप लोगों को पता है कैसे करना है, बट जल्दी में वो माइनस साइन के साथ मिस्टेक्स हो सकता है. सो डोंट डू एनी मिस्टेक्स, आराम से सॉल्व करना है. एंड करने के बाद उसी स्टेप में एक बार चेक कर लो कि साइन का सब कहीं मिस्टेक हुआ तो नहीं है. इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर क्वेश्चन एंड देन रियलाइजिंग कि आंसर नहीं आया, तो चेक करो उसी स्टेप में कि साइन ठीक से लगाया है कि नहीं, स्पेशली व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, सो हो गया रेशियो प्रोपोर्शन का. नेक्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम. अब इसमें दो मेन थ्योरम्स है जो मालूम होना चाहिए. रिमाइंडर थ्योरम कब यूज़ करते हैं? सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है f(x) एंड इफ इट इज़ डिवाइडेड बाय x minus a, रिमाइंडर इज fa. इफ इट इज़ डिवाइडेड बाय x plus a, रिमाइंडर विल बी f of minus a. and ax plus b है, remainder will be f of minus b by a. Suppose if you have any confusion, suppose ax plus b, suppose if you have say 2x plus 3, अगर ये कन्फ्यूजन है, व्हाट यू कैन डू, ये जो डिवाइजर है पुट इट इक्वल टू 0. सो यहाँ से 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2. सो इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x plus 3, then remainder will be f of -3/2. -3/2 is not the remainder. f of -3/2 is the remainder. Okay, so you have to find the value of the given polynomial at x equal to -3/2. Okay, you have to find the value of f of -3/2. Okay, so in short you have to change the sign. x minus a है तो f of a is the remainder, x plus a है, f of minus a is the remainder. So that's all about remainder theorem. Next important theorem, factor theorem. Fx is any polynomial, then x minus a is a factor of fx, implies and implied by fa equal to 0. implies and implied by का मतलब है दोनों साइड से ये theorem वर्क करता है. That means x minus a is a factor of fx, then f of a is 0. Conversely, अगर f of a 0 है, we can say that x minus a is a factor of fx. Example, suppose if we say that x minus 1 is a factor of fx, then f of 1 will be 0. Okay, if you put x equal to 1 in the polynomial f of 1, it will be 0. Conversely, if we say that f of 1 0 है, x minus 1 is a factor. If we say that f of minus 1 0, then x plus 1 will be a factor of fx. Okay, then division algorithm you have to know. fx equal to gx into qx plus rx. This is the quotient, this is the remainder and divisor, and ये हो गया dividend. And rx पे क्या condition है? remainder will be either 0 or degree of remainder will be less than degree of gx. That is the divisor. Okay, नाउ इसके क्वेश्चंस यूजुअली सिंपल रहता है. लेंथी क्वेश्चन खाली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को वेर यू हैव टू फैक्टराइज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो आई होप यू नो द स्टेप्स. सो सपोज ये पॉलिनोमियल है, इफ दे गिव यू ओनली द पॉलिनोमियल, फर्स्ट स्टेप इज डिनोट द पॉलिनोमियल. इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन x, denoted by fx. Okay, so let fx equal to this. First step, write the constant, that is -4. Second step, then ये constant term के सारे factors लिखना है. Step 3 हो गया +or -1, +or -2, +or -4. Okay, so factors लिख लिया. 3 steps हो गया. अभी रफ में, फेयर में सब कुछ नहीं दिखाना. रफ वर्क में जस्ट सी की ट्रायल एंड एरर मेथड से सी की इसमें से कौन सा इसमें डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब यू गेट 0. ओके, कौन सा ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. लाइक 1 डाल के देख लिया, देन -1, मोस्टली 2, -2, इतने फैक्टर्स में वो सेटिस्फाई हो जाता है. ठीक है, यू डोंट हैव टू शो ऑल द फैक्टर्स इन द फेयर वर्क. ओके, नाउ ये क्वेश्चन में -1 0 हो रहा है. सो जस्ट जो भी f -1 0 हो रहा है, नाउ जस्ट शो दैट इन द फेयर वर्क. सब कुछ फेयर में नहीं दिखाना. ओके, सो f of -1 सेटिस्फाई कर रहा है. सो जस्ट शो दैट f of -1 इज -1 क्यूब +1 -4 इंटू -1, देन -4 इट इज 0. सो फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे. सो मेंशन द थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बाय फैक्टर थ्योरम f of -1 0 है, दैट मीन्स x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx. साइन चेंज होता है. f of -1 0 मीन्स x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अभी x plus 1 एक फैक्टर मिल गया. सो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है fx, उसको डिवाइड करेंगे x plus 1 से. व्हेन यू डिवाइड क्यूबिक बाय x plus 1, सो क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. सो fx विल बी x plus 1 इंटू
to, you will get some quadratic polynomial. Okay, dividend equal to divisor into क्वेश्चन. रिमाइंडर विल बी 0 क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है और हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया. अगर डिवीजन के टाइम इफ यू आर नॉट गेटिंग 0, चेक योर डिवीजन. यू माइट हैव मेड सम मिस्टेक इन द डिवीजन बिकॉज ये फैक्टर है, सो इसका मतलब रिमाइंडर शुड बी 0. ठीक है. सो एंड क्वाड्रेटिक यू हैव टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे. यू ऑलरेडी हैव 1 फैक्टर, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का यू विल गेट 3 factors. Okay, so these are the steps. ये एक lengthy question आ सकता है. So these are the steps you have to follow. Okay, so अगर वीडियो अगर helpful लगा हो, so do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.